Welcome back. In this video, we are going to learn about surface area and volume, where we will discuss some formulas related to the 3D figures like cube, cuboid, cylinder, cone, sphere and hemisphere. First term is not in our syllabus this year. So let's start one by one. So the first formula we are going to study is cube. So what is cube? Cube is a 3D representation of a square. अगर कोई भी एक मेरे पास स्क्वायर है, अगर मैं इसका 3D रिप्रेजेंटेशन बनाता हूं, that figure will be a cube. So as we know that in square, both the sides are equal. Both the sides are equal. अब इसको कैसे हम समझ सकते हैं? अगर मेरे पास एक स्क्वायर शीट है और उसके ऊपर मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाता हूं, सच दैट उसकी जो हाइट है वो उसके साइड के इक्वल है, then the figure formed will be a cube. So what are the things we are going to learn about? LSA, which means a lateral surface area, TSA, the total surface area, and a volume. So what is difference between a TSA and a CSA? TSA means the total surface. It means all the 6 surfaces. जितने भी मेरे 6 surface है उनको अगर मैं include करता हूं, that all comes under the total surface area. In lateral surface area, अगर मैं top और bottom को हटा दूं, then the area of the 4 walls is lateral surface area. So let's see, if this is the base and this is the top, then the area of 4 walls will be given by 4 into area of a square, which is side square. So this will be 4a square unit. If this is centimeter, then it will be centimeter square. So what will be the total surface area? We have total 6 surface, then 6 faces, then it will be 6 into side square. And what is volume? The product of all the dimensions. Here the length is a, the breadth is a, the height is a, then the product of all will gives you a cube. This will be cubic unit. So these are the 3 formulas that you need to remember for cube. Now let's discuss cuboid. So the next shape we are going to discuss is cuboid. So what is cuboid? Cuboid is a 3D representation of a rectangle. एक rectangle है अगर मेरे पास, अगर मैं इसका 3D representation बनाता हूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, where the dimension of the base will be the length and breadth raised to the some height. So again इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे? TSA, LSA and volume. Before discussing the formulas, let's visualize the scene. Suppose मैं जिस रूम में खड़ा हूं, इसका जो बेस एरिया है that is length and breadth. ये वाली साइड क्या हो गई? लेंथ हो गई, ये वाली ब्रेथ हो गई. और इस रूम की हाइट सपोज हम h मान लेते हैं. Then the area of this side, this face will be length into height. और इधर वाले का क्या हो जाएगा? ब्रेथ into height. सिमिलरली इसके अपोजिट जो फेस है उसका भी लेंथ इंटू हाइट होगा, इसका क्या होगा? बेस इंटू हाइट होगा इधर वाले साइड का. अगर मेरे बेस का एरिया कितना है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका जो सरफेस है, जो रूफ बोल सकते हैं हम, उसका भी एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ होगा. तो अगेन इफ आई एम सपोज टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया, तो मुझे टॉप और बॉटम को हटाना होगा. देन इट विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू एच प्लस ट्वाइस ऑफ ब्रेथ इंटू एच. इसके अपोजिट और इस वाले के अपोजिट दोनों का हमें निकालना होगा. सो दिस विल बी ट्वाइस ऑफ एच एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट. क्लियर है यहाँ तक? नाउ कमिंग टू द टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? बेस और हाइट दोनों इंक्लूड हो जाते हैं. तो अभी तक क्या था हमारे पास? 2 लेंथ हाइट, ब्रेथ हाइट और लेंथ ब्रेथ. तो इसको हम कुछ ऐसे ले सकते हैं, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल स्क्वायर यूनिट. क्लियर है यहां तक? वॉल्यूम में क्या होता है? जितना भी डायमेंशन है, जैसे कितनी कैपेसिटी है उसकी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का कुछ एरिया होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ. एरिया ऑफ बेस विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ. उसको अगर हम एच हाइट तक लेके जाते हैं, दिस विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ रेज टू द हाइट एच. दिस विल बी क्यूबिक unit. I hope this is clear to you. Now let's discuss the next figure we are having is cylinder. In cylinder, we are going to study about the curved surface area irrespective of the lateral surface area. Why it's so?
बिकॉज इन क्यूब एंड क्यूबॉइड यहाँ पे जो सर्फेसिस होते थे वो क्या होते थे, मेरे फ्लैट होते थे, बट इन सिलेंडर द थिंग्स आर कर्व्ड. सो दैट्स व्हाई इररेस्पेक्टिव ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया वी विल स्टडी अबाउट कर्व सरफेस एरिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. कर्व सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया एंड अ वॉल्यूम. चीजों को थोड़ा विजुअलाइज करेंगे हम. सपोज एक बैंगल लेते हैं, बैंगल, ठीक है. बैंगल का अगर मैं सपोज ये बैंगल है और मुझे पूरा ये लेंथ निकालना है कि इसका कितना है, सो दैट विल बी 2 पाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ दैट बैंगल फ्रॉम द बाउंड्रीज, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल. अगर उस बैंगल को मैं ऐसे प्लेस करता हूं सरफेस पर, और ऐसे ही सेम साइज की बैंगल्स को अगर प्लेस करता हूं एक के ऊपर एक के ऊपर एक, रेज टू सम हाइट, कुछ हाइट तक अगर मैं लेके जाता हूं तो मेरा क्या होगा, एक ऐसा सिलेंडर सा बन जाएगा. देन इफ वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द कर्व्ड ओनली, देन दैट कम्स अंडर द कर्व सरफेस एरिया. और अगर मैं इसको नीचे से ऊपर से बंद कर देता हूं मतलब that should not be a bangle, that should be a complete circle, area of the circle. So वहां पे इसको मुझे डार्क करना पड़ेगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब मैंने क्या करा है, जो भी मेरा हॉलो पार्ट था उसको भी मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया. एंड इन वॉल्यूम वी विल लर्न अबाउट द कैपेसिटी. कैपेसिटी जैसे कि एक कंप्लीट सर्कल को, जैसे 5 रुपी कॉइन ले सकते हैं हम. 5 रुपी कॉइन पाई आर स्क्वायर, उसके ऊपर एक और 5 रुपी कॉइन, एक और ऐसे क्या बनेगा, एक सर्कल का सिलेंडर बन जाएगा. ठीक है. इन कर्व सरफेस एरिया क्या क्या डायमेंशंस थे हमारे पास, कुछ रेडियस थी, जैसे यहां पर है रेडियस 2 पाई आर. कितना हाइट तक लेके गए हम, h हाइट तक. सो 2 पाई आर एच विल बी द कर्व सरफेस एरिया. 2 पाई आर एच इसमें भी था, बट इसमें हमने पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर एड कर दिया इन टॉप एंड बॉटम. So this will become 2 pi r h plus r square unit. In volume जैसे मैंने एग्जांपल दिया पाई आर स्क्वायर, इसको हम मान लेते हैं सपोज 5 रुपी कॉइन. ठीक है. अगर मैं इसको एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस करता चलता हूं टू द हाइट h, so this will become pi r square h. So this will gives you the volume of the cylinder. I hope this is clear to you. Now let's discuss the cone. So to study cone, you can do an experiment at your place. How? Suppose एक आपने राइट सर्कुलर कोन लिया, ठीक है, और उसकी कुछ हाइट होगी, और इसी हाइट और इसी रेडियस का आपको एक सिलेंडर लेना है. ठीक है. So now next what you have to do, you have to check the capacity of this cone. So you will check, अगर मेरा इसकी कैपेसिटी पाई आर स्क्वायर एच है, so this will be 1/3 of that cuboid, that of cylinder. That will be 1/3 of the capacity of the cylinder. So to study the curve surface area and total surface area and volume में हमने देखा कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है, उसका 1/3 होता है. इफ दिस इज r, दिस इज h, सो व्हाट विल बी द स्लैंट हाइट. जो ये टिल्ट लेंथ है इसको हम बोलेंगे स्लैंट हाइट. बेसिकली अगर आप इसको देखें तो ये कुछ इस तरीके का है, ये h है, ये r है, एंड दिस इज राइट एंगल. सो दिस विल बी गिवन बाय पाइथागोरस थ्योरम, L इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. So the curved surface area will be given by pi r l. इस L के अबाउट कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है, पाई आर एल स्क्वायर यूनिट. टू स्टडी द टोटल सरफेस एरिया, ऊपर से भी आपको क्या करना पड़ेगा, उस कोन को बंद करना पड़ेगा. सो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर विल गिव यू पाई आर एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट्स डिस्कस द लास्ट फिगर्स स्फेयर, और उसके साथ में ही हम पढ़ लेंगे हेमिस्फेयर, बिकॉज दैट विल बी द हाफ ऑफ दैट स्फेयर. स्फेयर एंड हेमिस्फेयर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. सपोज हेमिस्फेयर क्या होती है, एक मेरी कंप्लीट बॉल,
और इस बॉल को अगर मैं ब्रेक डाउन कर दूं 2 पीसेस में, तो इसकी एक छोटा सा बाउल बोल सकते हैं इसको, या हाफ बॉल बोल सकते हैं। दिस विल बी हेमिस्फीयर। अगर इसकी रेडियस r है, सिमिलरली इसकी भी रेडियस r ही होगी, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ये भी r ही होगी, ठीक है। सो व्हाट विल बी गोइंग टू स्टडी? द कर्व सरफेस एरिया, द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम। सेम फॉर हेमिस्फीयर, curved surface area, total surface area and the volume. As I have told you, what is the difference between the curved surface area and the total surface area? Curved surface area और total surface area में difference क्या था कि वो सिर्फ हम इन curved surface area हम सिर्फ साइड्स के बारे में बात कर रहे थे, बट इन total surface area ऊपर और नीचे को भी हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। बट आई डोंट थिंक अगर मैं बॉल का एग्जाम्पल लेता हूं तो उसको बंद करने की जरूरत है, बिकॉज वो तो कंप्लीट ही है। So the curved surface area and total surface area for a sphere both are same, and that will be given by 4 pi r square. But as you can see in the hemisphere, जब मैंने बॉल को एक कट किया तो ऊपर से सरफेस क्या होगा, खाली हो गया, और ऊपर से हम देख सकते हैं वो कुछ इस शेप में होता है, ठीक है। सो द कर्व सरफेस एरिया विल बी गिवन बाय 2 pi r square. बट अगर मुझे उसको ऊपर से बंद करना है, that will be 2 pi r square plus pi r square. So this will be 3 pi r square. Now coming to the capacity of the sphere and hemisphere. For volume, we have a formula 4/3 pi r cube. And for the hemisphere, it will be the half 2/3 pi r cube, cubic unit, and these are square units. I hope all the formulas are clear to you. Please go through it, because formula का अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। अगर आपको ये फॉर्मुलेज लर्न है, यू विल बी एबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी डाउट है, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम एज वेल, एंड आई हैव स्टार्टेड अपलोडिंग द सैम्पल पेपर्स ऑन अ डेली बेसिस, so you can join the Telegram group as well. Thank you and have a nice day.